Hello students. See, in the last video we studied about 8th topic, that is elements of group first and second, means we studied S block elements. So after S block elements we are going to study the 9th topic, that is elements of group 13, 14 and 15, means these groups are situated in P block elements. So we'll continue this topic. So in this topic, few subtopics are omitted. Let me tell you which topic is not there for study. That is 9.1, which is the introduction. And after 9.1, we have 9.6.1, that is allotropes of carbon. It is not there. And then 9.8, entire 9.8 is not there. The chemistry of notable compound. So see the introduction. We have learnt in the topic 7, that is P block elements, the differentiating electron enters in the outermost P orbital. We also know that maximum 6 electrons can be accommodated in P subshell or 3 P orbitals. देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों उनको नाम दिया गया है? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन दैट सबशेल और ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, इसीलिए उसका नाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स है. और जहाँ पे पी ब्लॉक में पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसीलिए उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. और देखो पी ब्लॉक जो है उसमें 6 ग्रुप्स है, क्योंकि पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं इसीलिए. तो देखो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है. और पी में 6 ग्रुप्स है, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऐसे. और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक में 10 और ग्रुप्स है ऐसे. ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप्स, इनका सबका कोरिलेशन है. दिस गिव्स राइज टू 6 ग्रुप्स, that is 13 to 18 groups in P block elements. So the P block elements show greater variation in the properties than S block elements. देखो S block और P block का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा सा वेरिएशंस दिखता है कि P block के एलिमेंट्स थोड़े अलग हैं. See, in this chapter we are going to study the elements of group 13, 14 and 15, some details. तो हम इस टॉपिक में 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप का स्टडी करेंगे डिटेल्स में. द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम constitute the group 13 called boron family. इसे क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली कहते हैं, बिकॉज दिस ग्रुप इज स्टार्टिंग विथ बोरॉन एलिमेंट. और 13 ग्रुप. नाउ 14 ग्रुप में देखो इट इज स्टार्ट्स विथ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टीन. टीन के बाद लेड टू फॉर्म द ग्रुप 14. And this group is called as carbon family because the first element of group 14 is carbon. The elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, these are belongs to group 15 of the periodic table. So they are called as nitrogen family because the first element is nitrogen. Okay, now we'll see the electronic configuration of elements of 13 group, 14 group and 15 group. So it is given in table 9.1, condensed electronic configuration. Condensed means instead of writing too much lengthy electronic configuration, we will write down the electronic configuration with the inner core of nearest noble gas with respect to noble gas. Now boron is there, boron is 5, atomic number is 5. तो बोरॉन से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है?
NH2 लिखने की जगह पे हम लिखेंगे हीलियम और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वी विल राइट डाउन. देखो हीलियम इज 1s2 और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन नेक्स्ट ऑर्बिट दैट इज 2s2 2p1. Then we have the second member of boron family that is aluminium. एल्यूमिनियम के लिए देखो एल्यूमिनियम से पहले आता है नियॉन नोबेल गैस, तो नियॉन 10 3s2 3p1. गैलियम से पहले आता है आर्गॉन 18 एंड देन 3d10 4s2 4p1. इंडियम के पहले आता है क्रिप्टॉन दैट इज 36 4d10 and 5s2 5p1. Then we have thallium is 81, so xenon is 54 के बाद आता है 4f 14 5d10 6s2 6p1. So these are the electronic configuration of boron family. Now we'll see the electronic configuration of कार्बन फैमिली. और यहाँ पे देखो बोरॉन फैमिली के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP1. तो यहाँ पे दिया है देखो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज NH2NP1. देखो NH2NP1 अगर आप देखते हो तो बोरॉन में देखो NH2 2s2 2p1, इसे कहते हैं NH2NP1. तो यही कंटिन्यू होता है. देखो N की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है, जैसे 2s2 2p1 2 इज सेम. फॉर एल्यूमिनियम इट इज़ 3s2 3p1. तो 3 वैल्यू इज़ फॉर N. S इज़ अ सब शेल और सब ऑर्बिटल्स, तो कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और P में एक ही इलेक्ट्रॉन है. देखो P1 स्टैंड्स फॉर दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप इन P ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में कितने, P ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही है. सो फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स इट इज़ NH2NP2, मतलब NH2NP2. सी दिस कार्बन 6 कार्बन फैमिली ग्रुप 14 एलिमेंट्स. Condensed electronic configuration is कार्बन 6 हीलियम 2, जो रिमेनिंग है वो 2s2 2p2. सिलिकॉन इज 14 नियॉन 10 3s2 3p2. जर्मेनियम आर्गॉन 18 3d10 4s2 4p2. देन टीन SN कहते हैं. टीन इज एटॉमिक नंबर 50, हाफ सेंचुरी कहते हैं उसे. तो टीन इसको लिखते हैं टीन और इसे स्टैनस भी बोलते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज SN, सिंबल इज SN. तो जब ये कंपाउंड बनाता है लाइक SnCl2 तो उसे कहते हैं स्टैनस क्लोराइड. जैसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं वैसे उसे स्टैनस भी कहते हैं. सो नेम इज़ देयर टीन इवन स्टैनस. सो दिस टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 50, मतलब एटॉमिक नंबर 50 है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्रिप्टॉन देन 4d10 5s2 5p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. देन लेड इज़ 82. इसको कैसे इलेबरेट किया है वो देखिए. जेनॉन 4f14 देन 5d10, उसके बाद 6s2 और 6p2. तो देखो 6s2 6p2 ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप P ब्लॉक, मतलब ग्रुप 14 का. ओके. देन नाइट्रोजन फैमिली दैट इज N7. सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक हीलियम 2, फिर 2s2 2p3. फॉस्फोरस इज 15, नियॉन 10 3s2 3p3. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का कैसे है. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3. तो सब में NP3 आपको दिखाई देगा.
Then arsenic is there. Arsenic is written as argon 18 3d10 4s2 4p3. Then antimony. Antimony is denoted as Sb. Krypton. Krypton is 36. Then 4d10 5s2 5p3. उसके बाद बिस्मथ है. बिस्मथ झेनॉन इज 54 4f14 5d10 6s2 6p3. So these are the electronic configuration of group 13, 14 and 15. Now see, these electronic configurations differ from their nearest inert gas by 3 or 4 electrons. These elements do not occur in free monoatomic state and found as a compound with the other elements. ये एलिमेंट्स सारे कैसे हैं कि ये इनको 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. ये 3 और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं. तो हमेशा दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट by donating or accepting electrons with others. That's why they are not free in state, they are not available in free state. So always they are occur in compound formation. तो हमेशा वो compound formation में रहते हैं, compound form में. जैसे कि नाइट्रोजन है N2 है, P4 है, कार्बन 60 है. So this is the compound formation. और polyatomic covalent arrays या फिर पॉलीवेलेंट मतलब बहुत सारे आइटम्स को वो कंबाइन करके एक एरे बनाते हैं. जैसे कि ग्राफाइट है, डायमंड है. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन हियर, जस्ट नाउ वी स्टडीड. आफ्टर द स्टडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल स्टडी द ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15. देखो ट्रेंड्स कैसे है वो देखते हैं हम. एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक साइज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सारे हम देखते हैं अभी. देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो अ वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़. इन ग्रुप 13 the boron is a metal. देखो अभी बोरॉन के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि बोरॉन जो है ये फर्स्ट मेंबर है 13 ग्रुप का एंड इट इज़ अ मेटलॉइड. यू आर नोइंग द मीनिंग ऑफ मेटलॉइड. मेटलॉइड मीन्स द सब्सटेंस विच विल बिहेव्स और शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. सो दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. तो बोरॉन भी देखो कभी ये ऐसे दिखने में मेटल लगता है क्योंकि इसका ग्लोशी और हार्ड सॉलिड लाइक अ मेटल स्ट्रक्चर है, लेकिन पुअर कंडक्टर है, तो ये नॉन मेटल की जैसी भी है. सो द अदर एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप्स आर फेयरली रिएक्टिव मेटल्स. बाकी के जो सारे हैं वो बहुत ही रिएक्टिव है. एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट एम्बेंडेंट एलिमेंट. एल्यूमिनियम थर्ड एम्बेंडेंट है अर्थ क्रस्ट से. अर्थ क्रस्ट से जो भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उनका कितने परसेंटेज में मिलते हैं उसमें उनका एम्बेंडेंस का नंबर रहता है. तो एल्यूमिनियम का थर्ड नंबर पे है. ऐसे तो बहुत सारा एल्यूमिनियम अवेलेबल है. सो एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट एम्बेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. द फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 9.2. तो 13 का ही दिया है यहाँ पे. तो देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो आपको ऐसे नाम तो आने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए. तो एटॉमिक नंबर है 5, 13, 31, 49, 81. एटॉमिक मास, रेडियस, ये सब आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू रिमेंबर. जस्ट आपको ट्रेंड पता है कि जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ती है क्योंकि न्यू शेल इंट्रोड्यूस होता है. Okay, but still the contents are given. I will read out. Atomic mass is for boron 10.81, aluminium 26.98,
फिर गैलियम के लिए 69.72, इंडियम 114.82, थैलियम इज़ 204.38। इनका आयोनिक रेडियस देखो और एटॉमिक रेडियस 88, 143, 135, 167, 170। देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, साइज भी बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, आयोनिक रेडियस भी बढ़ती है यहाँ पे। नाउ वी हैव द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization enthalpy, you are knowing, we studied this in periodic table. Ionization enthalpy means the amount of energy required to remove the outermost electron from the atom in a gaseous state. तो जो गैसियस स्टेट में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें भी फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, फिर सेकेंड के लिए और थोड़ा चाहिए क्योंकि वो कैटायन फॉर्म होता है, और थर्ड के लिए और ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये बढ़ती जाती है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू attract the share pair of electron towards itself. सो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोरॉन की 2 है, फिर एल्यूमिनियम की 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8। बोरॉन और एल्यूमिनियम में डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका। This enlists atomic and physical properties of the elements of carbon family, which is group 14. In this group, all the three-dimensional types of elements are present. Three-dimensional मतलब 3 ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, तीनों टाइप के प्रेजेंट है कार्बन में। देखो, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन इज़ अ मेटलॉइड विच इज़ अ ब्राइटल इन कलर लाइक अ नॉन मेटल, it is a hard and luster having metallic luster. Germanium is also brittle but hard and luster metalloid. Tin and lead down the group, they are corrosion resistant and moderately reactive. तो देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। कार्बन मेटलॉइड है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर मेटलॉइड, टीन एंड लेड जो है वो करोजन रेजिस्टेंट है। तो सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ओके, करोजन रेजिस्टेंस में जो लोखंड को जंग लगता है वो लगने से बचाने के लिए टीन और लेड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों रिएक्टिव भी है। So the properties are given for ग्रुप 14। तो देखो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। एटॉमिक नंबर है उनका 6, 14, 32, 50, 82। एटॉमिक मास 12, 28, 72, 118, 207। एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली it is increasing, 77, 118, 122, 140, 146। इसके बाद है आयोनिक रेडियस, ये भी पहले का नहीं है दिया, और ये जो है 40, 53, 69, 78। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सबके लिए अलग अलग है। और आपको पता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा सेकेंड है, सेकेंड से ज़्यादा थर्ड होता है, ऐसे ये बढ़ते जाता है बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैटायन। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है 2.5, फिर बाकी 1.8, 1.8, 1.8 तीनों के लिए कांस्टेंट है, और लेड के लिए 1.9 है। सो डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन। देन नेक्स्ट इज 15 ग्रुप। 15th में देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
तो 7, 15, 33, 51, 83. Atomic mass 14, 30, 74, 20, 21, 208. Atomic radius 70, 110, 121, 141, 148. Ionic radius है 171, 212, 222, 76, 103. ये मेटल 3+ लिखा है. 3+ means when it will give its 3 electrons then it is forming 3+, और 3- अगर है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं तभी है. नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो गिवन फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन. सो ऑब्वियसली इट इज़ इंक्रीजिंग. पहले जितना एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा time the cations are formed and they are close to nucleus. So it's difficult to remove that electrons which is very close to nucleus. Then we have electronegativity. नाइट्रोजन के लिए 3 है. नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस है 2.1, देन 2, 1.9, 1.9. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, टिन, बिस्मथ, लेड. सॉरी, बिस्मथ, लेड नहीं, यहाँ पे बिस्मथ, एंटीमनी एंड बिस्मथ. सो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन. दीज वैल्यूज़ नो नीड टू रिमेंबर. आपको ये टेबल के जो वैल्यूज़ दिए जाते हैं ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको ध्यान में रखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती है या कम होती है वो याद रखना है. एटॉमिक रेडियस कम होता है कि बढ़ता है वो याद रखना है. ऐसे नहीं पूछेंगे कि इतना पर्टिकुलर क्या है. नो, दे विल नॉट आस्क. सो ऐसे जो टेबल्स के वैल्यू है ये आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं. सो यू मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, देखो, ग्रुप 15 is the nitrogen family. Table 9.4 shows atomic and physical properties of the elements of group 15. This group also include the 3 traditional types like nitrogen is gaseous and brittle, phosphorus are non-metal, arsenic and antimony are metalloids, while bismuth is moderately reactive metal. तो बिस्मथ कैसे है? बहुत ही रिएक्टिव मेटल है. आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स है. फॉस्फोरस नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है लेकिन वो गैसीय स्टेट में है. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज अ मेटल. तो ये तीनों टाइप के एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है. जैसे 14 में भी वैसे ही है. ओके, 14, 13 और 15. 13 में इतना वेरिएशंस नहीं, लेकिन 14, 15 में बहुत है. So next is the chemical properties of the elements of group 13, 14, 15. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है उनका. नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स when they are forming the compounds that whatever numbers are we are getting, that is called as oxidation state. और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 8 में से उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है. जैसे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द प्राइमरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑल एलिमेंट्स. द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स एंड पी इलेक्ट्रॉन्स. तो एस और पी के जो सम करते हैं वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द इट्स एग्जिबिटेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय दैट एलिमेंट्स. तो इंडिविजुअल एक एक का देखेंगे हम. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. In boron, carbon, nitrogen families, the group oxidation state is the most stable oxidation state for lighter elements. Beside the elements of groups 13, 14 and 15 exhibit other oxidation state which are lower than the group oxidation
The lower oxidation state become increasingly stable as we move down to heavier elements in the group. देखो ग्रुप 9 टेबल 9.5 shows variation oxidation state exhibited by elements belonging to these groups. तो हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहला कॉलम, देन है ग्रुप ऑक्सीडेशन, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एग्जाम्पल्स. देखो ग्रुप 13 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP1. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तीनों में, ये 13 ग्रुप में. इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन S एंड P. तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है. तो ये तीनों भी दे सकते हैं. सो इट्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +3. लेकिन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 को छोड़ के इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1. तो एग्जाम्पल है BF3 मतलब बोरॉन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3 और थैलियम इज़ +1. देखो थैलियम एक ही बना रहा है ना, Tl Br का -1 है तो थैलियम का +1 होगा. तो ग्रुप 14 देखो, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP2. तो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो इट इज़ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज़ इक्वल टू +4. और ये +4 को छोड़ के अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 -4. तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स दैट इज़ CH4, CO2, CCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, लेड क्लोराइड. तो देखो जहाँ पे CH4 है वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, CO2 है वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी +4 है. देखो यहाँ पे 4 है. फिर स्टेनस इज शोइंग 2 वैलेंसी और लेड इज आल्सो शोइंग 2 वैलेंसी. तो कभी 4 है कभी 2 है. नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं. तो इसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +5. लेकिन दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके पॉसिबल है, जैसे +3 और -3. ये तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या फिर 3 दे देंगे. सो N2O5, NH3, NF3, PH3, PCl5, ASH3, SbH3, SbCl3, BiCl3. तो ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. So today you will study this electronic configuration of group 13, 14 and 15. कंडेंस फार्मूला जो लिखा है वो आप लिखो, तीनों ग्रुप के लिखो और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रीड करो. ओके.